Hello everyone. So we are here to talk about the introductory microeconomics. We have already finished some of the classes, and I'm sorry about the last class. I couldn't take because of some personal problem. I was not able to take, but here we are. So whatever we are left, I have been told by the department to continue with the next whatever I'm going to teach you today. So maybe you are aware we have already finished this introductory part except the 21st. That day we are supposed to discuss the scientific method, the role of assumption, models and mathematics, why economists sometimes disagree, interdependence and gain from the trade, specialization. So these part I have been told by the SOL that we are going to continue in the, we will have the next session. So, you will come to know about that when we are going to take the next class. I hope you all are will be okay. So we are starting a new topic today, which is called demand, supply and demand. So what are the supply and demand? What we are going to discuss in supply and demand? I will go one by one so that, and also today I would like to mention here that we were having the 45 minutes class and 50 minutes class, 45 to 50 minutes class, and then last 10 minutes we are going to have for chat. Not I have to, because today I don't have time, sometime I have. So then I give you time for the, question answer session. So I will try to finish up the things within 45 minutes, and rest of the time we will talk about the question answer session. So directly I will go for what is the supply and what is demand. So in supply and demand we will have the many classes. How many classes in supply demand we are going to take? We will have the 4 classes. 4 classes for supply and demand, 45 minutes classes. Then we were finished with the supply and demand. So let's start. What are the topics we are going to discuss today in supply and demand? We are going to discuss today market and welfare markets and competition, determinants of the individuals demand supply, demand supply schedule, and demand supply curve, market versus the individual demand and supply. So these are the things, some of the things I would like to give you some feedback, talk to you about these things. So let's go by one. So first we will talk about what is the market and welfare market and competition. There are 3 words: market, welfare markets and competition. I would like to first talk about not this. I would like to first talk about what is the demand. Why demand is, then I will revert back to these slides later on. Once I would have been discuss about the supply and demand, then we will come to market, welfare market and competition. We will come to later, because if I felt that the sequencing is not right, so that it will puzzle you initially. So we are going to first talk about what is the individual demands. Why demand is important? What is the demand means that for anyone? So individual demands. Demand is a schedule that so that various amount of products consumers are willing and able to buy at each specific price in a series of possible prices during a specific time period. आप लोग ये भी मुझे बोलते हैं, हिंदी में भी बोला करिए आप. देखिए कोई भी चीज, अगर किसी चीज के लिए आप कुछ पे करने के लिए मार्केट में जाते हैं या ईगर हैं, देने के लिए तैयार हैं, वो चीज हमारी जो होती है एक स्पेसिफिक टाइम पे उसकी कुछ प्राइस है, और उस प्राइस को अगर आप खरीदने के लिए तैयार हैं उस प्राइस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे, वो डिमांड बन जाती है. तब तक वो डिमांड नहीं है जब तक कि आप विलिंगनेस टू पे नहीं है. विलिंग एंड एबल टू बाय, यानी कोई भी चीज आप खरीदना चाहते हैं और खरीद सकते हैं, एबिलिटी भी है, यानी हमारे पास पैसा भी है कि हम खरीद भी सकते हैं. ये दोनों चीज जहां पे हो एक पर्टिकुलर टाइम में, वो डिमांड बन जाती है. अब आप लोगों को मैं इसका सबसे अच्छा एग्जांपल दूं. अभी आप देखिए कोविड आ गया भाई, मास्क सबको चाहिए, तो मास्क
हर लोग खरीदना चाहता है क्योंकि कंपलसरी है, आप मार्केट में नहीं जा सकते, आप बाहर नहीं जा सकते हैं विदाउट मास्क, अदरवाइज अब तो चार्जेस भी लगाने शुरू कर दिए हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है अदर प्लेसेस, वो तो चार्ज है कि इफ यू आर नॉट वियरिंग द मास्क यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ मनी। तो बिकॉज ऑफ दिस अभी जो आज की डेट में है आप मास्क की डिमांड, तो वो एक मास्क की डिमांड है, इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर टाइम पे एक वैल्यू पे, और लोग उसको खरीदना चाहते हैं, वो हमारी हो जाती है डिमांड। यानी डिमांड होने के लिए तीन चीज बहुत जरूरी है। एक तो कंज्यूमर्स प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय, यानी कंज्यूमर जो है कोई चीज खरीदना चाहता है और उसके पास पैसे भी है खरीदने के लिए, साथ में एक पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज हमारी डिमांड हो जाती है। अब दूसरी बात जो हम कहना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड, कह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इंडिविजुअल्स आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट ए पर्टिकुलर प्राइस एट ए पर्टिकुलर टाइम। कह रहा है कि वो सेम ही बात है, उसमें थोड़ा सा क्वांटिटी की बात है कि अगर किसी चीज को आप किसी पर्टिकुलर टाइम में कितने लोग उस चीज को खरीदना चाहते हैं, यानी विलिंगनेस टू पे है, and they are able to buy that at a particular time, that's become the quantity of demand. I think ये quantity of demand पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि what is the quantity of demand। अच्छा, then ये है कि भाई इसको थोड़ा फर्दर और मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि यू नो इफ कुछ लोगों को समझ ना आया हो, तो कह रहे हैं कि इन अनदर वर्ड्स डिमांड इज द क्वांटिटी डिमांड एट ऑल प्राइसेस ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कि किसी भी स्पेसिफिक पीरियड पे किसी चीज की जितनी भी प्राइसेस पे डिमांड हो। अब आप जानते ही हैं प्राइसेस क्यों यहाँ कह दिया, आप अगर मैं कहूँ कि इस कोविड के टाइम में फेस मास्क की बहुत तरह के हैं, 10-20 रुपए का है, 20 का भी है, 50 का भी है, 100 का भी, तो डिफरेंट प्राइसेस पे है, लेकिन विलिंगनेस टू बाय है एंड दे आर एबल टू बाय दिस। So a change in price will change the quantity demand, not what the demand, and other factors, then the price change will change the demand. Include non-price factors include what are the factors which creates the demand, that is basically the price. What are the non-price factors? That include income, preferences, expectations, number of buyers. So these are the non-price factors which they're not going to impact the price, so that you know demand is going to decrease or increase. That's not going to happen. Okay, so next we will talk about a bit of what is the law of demand. There should be some law for each and everything. We say, you know, rule of thumb. So what is the law of demand state? First I would like to, you know, give you mini answer, and then I will try to elaborate. There are, as a price of a good increases, the quantity demand of goods falls, and as the price of good decreases, the quantity demands for goods goods rises. आप लोग जानते हैं कि कोई भी चीज की अगर बहुत ज्यादा आप कीमत बढ़ा दीजिए ना, उसका प्राइस बहुत कर दिया, अब यहाँ हो जाता कि आपका जो कोविड का जो फेस मास्क है ना, वो 100 से नीचे है ही नहीं। अब जिसके पास इतने पैसे होंगे वही खरीद सकता, आम आदमी तो नहीं खरीद सकता। सो देयरफॉर अगर ये लॉ है कि जहाँ पे जब आपकी प्राइस ज्यादा होगी डिमांड कम होगा, और जहाँ पे प्राइस कम होगी डिमांड ज्यादा होगा, यानी उनका जो रिलेशनशिप है इनवर्स रिलेशनशिप है। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। सो ये लॉ है बेसिकली, ये द लॉ ऑफ डिमांड है कि जब भी प्राइस ज्यादा होगी आपकी डिमांड कम होगा, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड, सो इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। ओके, सो नेक्स्ट मैं बात करूंगी एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब थोड़ा सा कुछ हम इसको एक्सप्लेन कर दें कि ये जो प्राइस घटती बढ़ती है आपकी, उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसकी प्राइस को फ्लक्चुएट करती है। एक हो सकता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, जैसे आपको पता है, मैंने बताया कि वैरायटी ऑफ मास्क हैं, तो ये डिफरेंट जो मास्क है ना, वो वैरायटी जो है ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। लेट्स सपोज अभी आपने एक कॉटन का मास्क खरीदा, वहीं पे कुछ
डिफरेंट तरह के जो आ गए हैं मास्क, कोई यू नो there will be some print and others, fashion, other thing. तो ये सारी की प्राइस एक दूसरे पे डिपेंड करती है. अगर वो आपका कॉटन का मास्क जो था अभी 40 का हो गया, लेकिन जो प्रिंटेड वाला मास्क है वो 20 का ही है, तो कॉटन की डिमांड जो होगी वो कम हो जाएगी कंपेयर टू प्रिंटेड. सो दिस इज द कॉल्ड द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अब इसको मैं थोड़ा आपको यू नो आई विल गिव यू द डिफिनिशनल काइंड ऑफ थिंग्स. First, I will say, as the price of product increase, as the price of product A increases, product A is comparatively more expensive than product B. If B prices remain constant, therefore the consumer will substitute B for A, causing the consumption of A to decrease. जो हमने सबसे आपको अच्छा सा एग्जाम्पल दिया है वो यही दिया है फेस मास्क का, कि अगर आपकी कॉटन एंड प्रिंट की जो दो हमने बात की कि प्रिंट की प्राइस तो कांस्टेंट रही, लेकिन कॉटन की प्राइस जो है इंक्रीज हो गई. इस केस में क्या होगा कि जो प्रिंट वाला मास्क है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी. इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. अच्छा, एक तो इस तरह से बढ़ सकती है डिमांड के चेंज होने से और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से. और क्या हो सकता है? इनकम इफेक्ट हो सकता है. हायर प्राइसेस विल लोअर द कंजम्पशन पावर ऑफ योर इनकम एंड डिक्रीज द क्वांटिटी डिमांड. अच्छा, ऐसा है कि अगर आप लोग घर में कभी कभी देखते होंगे कि भाई इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, कि जो सब्जी आप 100 रुपये में ला लेते थे वो वेजिटेबल्स आपकी 150 की हो गई, 200 की हो गई. तब आप क्या करते हैं? अपनी डिमांड को कम कर देते हैं. अगर आप 2 kgs पोटैटो खाते थे तो अभी 1.5 ही कर लेंगे, 1 ही kg कर लेंगे. So that is the called the income effect. Because of your income is constant but prices are going up. So therefore you are reducing your consumption. That is the called the income effect. अब उसको एक बार और मैं स्टेट करती हूँ so that you are able to write. And please, whosoever is not able to write down, click the pictures. Take the pictures of PPT so that you can see the latter and read, understand. So income effect basically is higher prices will lower the consumption power of your income and decrease the quantity demand, which I have given you example of the vegetables and inflation. Third is expansion of law of demand is law of diminishing marginal utility. ये आपने देखा होगा कि जब आप बहुत तेज से आपको भूख लगी है, जब आप घर पे आते हैं तो बहुत जल्दी पानी पीते हैं, तो वो जब आप पानी पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं तो उसका सेटिस्फेक्शन आपको बहुत ज्यादा मिलता है. लेकिन जैसे जैसे आपकी भूख शांत होती जाती है, यू आर सेटिस्फाइड, वो आपका जो यूटिलिटी है उसको कम होता जाता है. उसको कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. यानी वंस यू हैव द फर्स्ट टाइम you feel that I'm much more satisfied, but once you start adding up, your marginal utility start decreasing. So that is called the law of diminishing marginal utility. Just to write down, as a person consumes more of goods, the additional utility of consuming more will eventually decrease. This means that to encourage the additional consumption, prices must fall. तो ये कह रहा है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कि जैसे जैसे ज्यादा चीजों को आप खरीदते जाते हैं, आपकी यूटिलिटी है वो कम होती जाती है. अगर आपको अपनी डिमांड को बढ़ाना है तो इसके लिए जरूरी है कि आपकी प्राइस जो है वो कम होनी चाहिए, क्योंकि आपकी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है. जैसे ज्यादा खाते जाएंगे कम मिलेगा, तो अगर प्राइसेस कम नहीं हुई, यू आर नॉट गोइंग टू बाय द मोर ना. सो फॉर दैट यू नीड टू हैव द प्राइसेस शुड फॉल. ओके, तो अभी हम लोगों ने बस की इंडिविजुअल डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, या एक्सपेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की हमने कहा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, इनकम इफेक्ट क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है. नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हाट इज द डिमांड कर्व. डिमांड कर्व होता क्या है और दिखता कैसा है. अभी हमने पहले आप लोगों को बताया कि डिमांड कर्व जो है उसका प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होगा. इनवर्स का मतलब है वो डाउनवर्ड स्लोप होगा. चलिए अब देखते हैं कैसा होता है. सो कह रहा है कि डिमांड कर a product demand curve, so how much buyers of the product want to buy at each possible price, holding fixed all other factors that affect the demand. कह रहा है कि जो बायर्स है वो किसी एक फिक्स प्राइस पे किसी चीज को कितना खरीदेगा वो बताता है हमारा डिमांड कर्व.
और उसके केस में कह रहा है कि अदर्स जो फैक्टर्स आपके हैं, आपकी इनकम है, प्रेफरेंसेस हैं, अदर जो चीजें हैं वो सब कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसमें कोई चेंज आप नहीं करिए. इफ यू चेंज देन यू कांट सी व्हाट इज डिमांड कर्व. सो डिमांड कर्व के लिए जरूरी है कि अदर्स जो फैक्टर्स हैं वो जो है वो कांस्टेंट रहने चाहिए. अच्छा, तो डिमांड कर्व दिखेगा कैसे? कुछ ऐसे दिखेगा. इसमें देखिए द डिमांड कर्व, एक तरफ हमने प्राइस दिखा दिया, दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज दिखा दिया है. तो प्राइस जैसे जैसे आप कम करते जाएंगे वो कह रहे हैं कि डिमांड आपका बढ़ता जाएगा. दैट्स इट्स वेरी लीनियर रिलेशनशिप, बट ऐसा होता नहीं है. डिमांड इज ऑलवेज नॉट लीनियर. और डिमांड वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द नॉर्मल गुड्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द नॉर्मल गुड्स. यानी आपका बहुत ज्यादा उस पर स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस नहीं है. So these are the things are just normal goods we are talking about. Okay, what is the next? Next is अब देखिए इसको थोड़ा सा हमने इलाबोरेट करके कहा है कि पिक्चर दिखा दिया. एक तरफ हमने प्राइस ले लिया, एक तरफ क्वांटिटी ले लिया कि 10 रुपए का है तो कुछ नहीं खरीदेगा. अगर 8 रुपए केजी है तो 8 रुपए केजी कोई चीज है तो वो 10 केजी खरीदेगा. 6 हो गया तो 20 क्वांटिटी खरीदेगा. 4 हो गया तो 30 खरीदेगा. 2 रुपए का 2 रुपीज केजी है तो वो 40 खरीदेगा. तो ये एक हमने, अब इसको मैं ज्यादा बेटर वे में अगर कहूँ, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द गुड्स एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स. ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी. और क्यों होगा? बिकॉज जो क्वांटिटी है और जो प्राइस आपकी है उसमें इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए जो आपका ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा. अच्छा, अब देखिए पहले हमने आपको बहुत ब्रीफ में बताया था कि सब्स्टिट्यूशन क्या है गुड्स एंड सर्विसेज का. थोड़ा सा उसको और हम फर्दर इलाबोरेट कर देंगे. देखिए गुड्स भी दो तरह के होते हैं. एक सब्स्टिट्यूशन गुड्स होता है, जैसे मैं कहूँ कि ठीक है आप ब्रेड कई तरह के हो सकते हैं. चपाती हम कहें, चपाती आप कई तरह की खा सकते हैं. गेहूं की खा सकते हैं, आप मक्के की खा सकते हैं, आप चने की खा, तो ये सारे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे चपाती के. ठीक है, तो दो तरह के गुड्स होते हैं. एक तो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, कम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं. तो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं कि एक चीज के बदले आप उस दूसरी चीज को कंज्यूम कर ले, या वो प्रोडक्ट होगा जिसको आप कंज्यूम कर ले, वो आपका सब्स्टिट्यूशन होता है. सो अब इसको मैं थोड़ा डिफिनिशनल आपको बताऊंगी. टू प्रोडक्ट्स आर सब्स्टिट्यूट इफ ऑल else equal, an increase in the price of one of the products causes buyers to demand more of the other products. कह रहा था कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होता है कि बायर जो है, अगर एक की प्राइस इंक्रीज होती है और सब कुछ एल्स कांस्टेंट हो तो दूसरी चीज को खरीदेगा. दूसरा जो सब्स्टिट्यूट उसको खरीदना वो शुरू कर दे, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, कम्प्लीमेंट्री क्या होता है? कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कहते हैं कि कोई भी ऐसा गुड्स जिस दोनों को आप साथ में यूज करें, कोई भी दो चीज जो आप साथ में यूज करें. जैसे मैं कहूँ कि इलेक्ट्रिसिटी की बिल तो बढ़ गई, लेकिन साथ में अगर आपका क्या कहते हैं, जितने लोग भी टेलीविजन देखते हैं, जो टेलीविजन केबल कनेक्शन आप लेते हैं उसकी प्राइस भी बढ़ जाए, तो वो कम्प्लीमेंट्री है. यानी आप इलेक्ट्रिसिटी का तब तक, और जो, या इसका और बेटर मैं एग्जांपल आपको दूं कम्प्लीमेंट्री गुड्स का. आप ले लीजिए, आपके पास पेन है, पहले आते थे ना फाउंटेन पेन आते थे जिसमें आप इंक डालते थे. इंक एंड फाउंटेन पेन हो सकता है, कुकीज एंड क्रीम हो सकता है. कुछ लोग कुकीज और क्रीम दोनों साथ में खाते हैं. तो ये दोनों बिकॉज ऑफ यू आर यूजिंग टुगेदर. आप डीजल और कार का ले लीजिए, क्योंकि भाई अगर डीजल की प्राइसेस, कार की प्राइसेस बढ़ गई हैं बहुत ज्यादा, तो डीजल का डिमांड कम हो जाएगा. यानी वो दोनों साथ साथ में चलेंगे, दोनों का डिमांड एक साथ होगा. उसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड सर्विसेज. तो कह रहा है कि टू प्रोडक्ट्स आर कम्प्लीमेंट इफ ऑल एल्स इक्वल, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ वन ऑफ द प्रोडक्ट कॉजेज कंज्यूमर्स टू डिमांड लेस फॉर द अदर प्रोडक्ट्स. जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमने दिया कार का, कि अगर कार की प्राइसेस बहुत हाई हो जाए तो आप देखेंगे कि डीजल की जो प्राइसेस है या पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो डाउन हो जाएंगी. उसका रीजन, पेट्रोल की डिमांड जो है वो डाउन हो, प्राइसेस नहीं डिमांड. यानी एक के आपने प्राइसेस बढ़ा दिया जिससे दूसरे की डिमांड कम हो जाए, उसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है, आई होप यू पीपल आर गेटिंग. ओके,
अच्छा, अब ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई ये जो डिमांड है उसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, किस वजह से हम किसी चीज को खरीदते हैं, वो क्या रीजंस है, डिटर्मिनेंट्स क्या है उसके। अच्छा चलिए, अब इसमें वन बाय वन हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स जो हैं उसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। कह रहे व्हेन द प्राइस चेंजेस क्वांटिटी डिमांड विल चेंज, दिस इज द moment along the same demand curve. When the factors other than prices and demand curve will shift, these are the determinants of demand curve. अच्छा देखिए, ये जो चेंज होता है ना दो तरह का है। एक तो उसी लाइन पे जो हमने डिमांड कर्व की एक लाइन आप लोगों को ये दिखाई थी कि उस लाइन पे कोई चीज चेंज हो रही है, यू नो, गोइंग थ्रू द सेम लाइन, उसी लाइन पे चल रहा है, कम हुआ या ज्यादा हुआ उससे वो चल रहा है। एक ये हो सकता है कि आपका चूंकि इनकम चेंज हो गया, जैसे हमने वो वेजिटेबल का जो एग्जांपल दिया कि आपने वेजिटेबल की अपनी डिमांड कम कर दिया, यानी आपका जो कर्व ये है, ये कर्व जो है नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाए या ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाए। दो चीजें हैं, एक तो इसी कर्व पे आप चल रहे हैं, एक या तो ऊपर जा सकते हैं नीचे भी आ सकते हैं। अब हम डिटर्मिनेंट्स की बात यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा समझाएंगे। आई वुड लाइक टू गिव कि इसके क्या क्या, एक तो इनकम हो सकता है कि अगर इंसान की इनकम बढ़ जाए तो चीजों की डिमांड ज्यादा करेगा, अगर इनकम कम हो जाए तो चीजों की डिमांड कम करेगा। एक तो ये है, तो कह रहा है कि ए राइज इन ए पर्सन इनकम विल लीड टू एन इंक्रीज इन डिमांड, शिफ्ट डिमांड कर्व टू द राइट। क्योंकि इंक्रीज हो गया, इनकम बढ़ गई, तो आपका जो डिमांड कर्व है वो राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ए फॉल विल लीड टू डिक्रीज इन डिमांड for a normal goods whose demand varies inversely with income are called the inferior goods. अच्छा, यहाँ पे ये बड़ा ही कि भाई ये जो हम बात कह रहे हैं कि अभी ये आपकी अगर if the प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज, ये हम नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं, लेकिन कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनका कि अगर प्राइस आपका इनकम इंक्रीज हो जाए तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, उसको इंफीरियर गुड की कैटेगरी में रखा जाता है। सेकेंड जो हमारा बात है वो कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस की बात है, क्या डिमांड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है। कह रहा है कि फेवरेबल चेंजेस लीड टू एन इंक्रीज इन डिमांड, अनफेवरेबल चेंजेस लीड टू ए डिक्रीज। कि कंज्यूमर का कुछ हमारा, जैसे हर कंज्यूमर है भाई, किसी को अगर हम सोप में आपको एग्जांपल दें, वैरायटी ऑफ सोप है, किसी को लक्स पसंद है, किसी को डव पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो इंसान जो डिमांड क्रिएट करते हैं प्रेफरेंसेस के हिसाब से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है। ठीक है। थर्ड जो इसका कंपोनेंट है वो नंबर ऑफ बायर्स है। The more buyers lead to an increase in demand, fewer buyers lead to, कि किसी भी चीज की डिमांड जो होती है वो कितनी ज्यादा होगी, डिपेंड करता है कि कितने लोग उसको खरीदने वाले हैं। अगर ज्यादा खरीदने वाले लोग हैं तो उसकी ज्यादा डिमांड होगी, अगर कम खरीदने वाले हैं तो कम उसकी डिमांड होगी। फोर्थ जो है वो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। देखिए हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, इसका हमने एग्जाम्पल भी दिया है, फिर भी एक बार और मैं समझा दूं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होता है जिसकी एक गुड्स की जगह आप दूसरे गुड्स या सर्विसेज को यूज कर लें। जैसे हमने चपाती का एग्जांपल दिया कि वैरायटी ऑफ चपाती है, मक्का है, राई है, आपका व्हीट है, डिफरेंट है, आप इसमें किसी को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से कॉफी कॉफी एंड टी का आप ले लीजिए कि अगर कॉफी की प्राइस बहुत ज्यादा हो जाती है तो लोग टी पीना फिर शुरू कर देते हैं। कम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस ऑफ आइसक्रीम राइजेस, द डिमांड फॉर द आइसक्रीम। अच्छा, कम्प्लीमेंट्री गुड्स का बताया कि जो साथ साथ में यूज होंगे। आप लोग जानते हैं आइसक्रीम एंड टॉपिंग जो उस पे डालते हैं, तो अगर आइसक्रीम की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो टॉपिंग की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों साथ साथ में जाते हैं। ठीक है। जो पांचवा हमारा है डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ द फ्यूचर। अब फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है? दो एक्सपेक्टेशन हो सकती है, एक तो प्राइस की कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकती है और एक हो सकता है इनकम का एक्सपेक्टेशन क्या हो सकता है। कह रहा है कि कंज्यूमर्स करेंट डिमांड विल इंक्रीज इफ दे एक्सपेक्ट हायर फ्यूचर प्राइसेस, देयर डिमांड विल डिक्रीज इफ दे एक्सपेक्ट लोअर फ्यूचर प्राइसेस। देखिए एक तो ये भी होता है कि किसी चीज की कीमत जो है फ्यूचर में क्या होने वाली है। आप लोग जानते हैं कि अगर
आप सीजनल चीजें खरीदते हैं तो उसकी प्राइस कम होती है, लेकिन यही चीज आप नॉन सीजन में खरीदे तो उसकी प्राइसेस ज्यादा होती हैं, बिकॉज वो नॉन सीजन की चीज है। तो फ्यूचर प्राइसेस के हिसाब से भी डिमांड एंड सप्लाई इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है। इनकम की बात करें कि जैसे अगर हमें लगे कि भाई हमें तो यहाँ ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा, देन यू क्रिएट योर ओन डिमांड, देन यू आस्क फॉर मोर थिंग्स एंड ट्राई टू डू दैट। इसको अगर हम बहुत ही स्पेसिफिक वर्ड में कहें तो ये कह रहा है कंज्यूमर्स करेंट डिमांड विल इंक्रीज इफ दे एक्सपेक्ट हायर फ्यूचर इनकम, देयर डिमांड विल डिक्रीज इफ दे एक्सपेक्ट लोअर फ्यूचर। तो अगर हमें पता हो कि हमारी फ्यूचर में डिमांड बढ़नी है, यानी इनकम हमारी बढ़नी है, तो हम डिमांड ज्यादा करेंगे। अगर कम होनी है तो हम अभी से अपने वॉट एवर अमाउंट मनी आई एम हैविंग, आई विल ट्राई टू रिड्यूस दैट बाय डिमांड। अच्छा, जो लास्ट है इसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड है वो इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रोपेगेंडा। In modern time, it has been seen that the linkages and preferences of the consumer can be altered by advertisement and self-propaganda. Thus, the demand for many products like toothpaste, toiletries, others is partially caused by advertisement affecting the modern man life. कह रहा है कि कुछ चीजों की डिमांड जो बढ़ती है ना, या उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट है। आप जानते हैं, या कुछ नई पॉलिसी लेके आ गया कि 1 buy 1 get free or something like that, that also increase the demand for the goods and services. ओके तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है वो कहा कि इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, उसके लॉ क्या होता है, उसको थोड़ा हमने एक्सपैंड करके भी बताने की कोशिश की। देन आई हैव टॉक्ड अबाउट डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड क्या है। नेक्स्ट जो सेट ऑफ थिंग्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट, इट विल टॉक अबाउट द व्हाट इज द सप्लाई। ठीक है, हम किसी चीज की इंसान डिमांड करता है तो कोई ना कोई तो उसे प्रोड्यूस करेगा ही, कहीं ना कहीं से तो आएगा ही, उसको कहते हैं सप्लाई। अच्छा, सो सप्लाई क्या होती है? एक सप्लाई शेड्यूल होगा, एक क्वांटिटी सप्लाई। ये सेम है जो डिमांड के बारे में हमने कहा है। वी सो दैट अमाउंट ऑफ a product a producer is willing and able to produce and sell at each specific price in a series of possible prices during a specific time period। कि एक प्रोड्यूसर जो है वो विलिंग है और एबल है कोई चीज को प्रोड्यूस करने में एक स्पेसिफिक टाइम में, उसको सप्लाई शेड्यूल कहते हैं। सप्लाई शेड्यूल वो होता है जब एक प्रोड्यूसर किसी चीज को प्रोड्यूस करना चाहता है और साथ में वो एबल है उसको प्रोड्यूस करने के लिए विथ ए स्पेसिफिक टाइम, दैट इज कॉल्ड द सप्लाई शेड्यूल। व्हाट इज द क्वांटिटी सप्लाई? कह रहा है कि क्वांटिटी सप्लाई इज द अमाउंट ऑफ ए प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूसर आर विलिंग एंड एबल टू प्रोड्यूस एंड सेल एट ए पर्टिकुलर प्राइस एट पर्टिकुलर टाइम। एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई चीज को प्रोड्यूसर जो है वो तो विलिंग प्रोड्यूस करने की विलिंगनेस है, एबल है, और एक पर्टिकुलर प्राइस पे पर्टिकुलर टाइम में अगर उसको बेच रहा है, दैट इज द कॉल्ड द क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। ओके, अच्छा, अब इसके भी कुछ लॉज होंगे, डिटर्मिनेंट्स होंगे, वो हम लोग वन बाय वन देखेंगे। सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ सप्लाई कि भाई सप्लाई की क्या लॉज है। कह रहा है एज प्राइस ऑफ ए गुड्स इंक्रीजेस, एज ए प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेस द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ गुड राइजेस, एंड एज द प्राइस ऑफ गुड डिक्रीजेस द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ गुड फॉल। कह रहा है कि इसका जो सप्लाई जस्ट अपोजिट है डिमांड के, कि अगर सप्लाई कोई इंसान किसी चीज को प्रोड्यूस क्यों करेगा? जब देखेगा कि उसकी प्राइस बढ़ रही है भाई वो उसको प्रोड्यूस करेगा, जब उसकी प्राइस डाउन होनी शुरू हो जाएगी तो उसको बंद कर देगा। तो ये सब बेसिक लॉ है सप्लाई का। अच्छा, सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, और इस रिलेशनशिप क्या है? इनवर्स नहीं है, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप है। वो नेगेटिव रिलेशनशिप था, ये पॉजिटिव रिलेशनशिप आपका है। अब थोड़ा हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई, थोड़ा इसको हम एक्सपैंड करेंगे। कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट कॉस्ट इज गिवन, a higher price means greater profit and thus an incentive to increase the quantity supply. Price and quantity supply are directly related. कह रहा है कि
जो प्रोड्यूसर जो होता है, जो चीजों को मैन्युफैक्चर करता है या बनाता है, इंडस्ट्रीज जो होती है, वो चीजों को जब उसकी प्राइस ज्यादा होती है, क्योंकि उनका कॉस्ट एक मिनिमम कॉस्ट पे उन्होंने किया, अगर प्राइस वो बढ़ाते तो उनका प्रॉफिट बढ़ता जाता है। प्रॉफिट, दैट इज द इंसेंटिव टू प्रोड्यूस एनीथिंग। देयरफॉर if the prices are increasing, they will produce more goods and services. If the prices are declining, they are going to shut down their manufacturing units and going to do something else. So ये उसका बेसिक लॉ है। अच्छा, अब ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई सप्लाई क्या है, सप्लाई क्वांटिटी क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कर्व, कि कर्व इसका दिखता कैसा है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द कर्व। सप्लाई कर्व जो है आपका, कह रहा है कि इट इज द ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड द प्राइस ऑफ गुड्स। इट इज अपवर्ड स्लोपिंग। ये हम बता चुके हैं कि सप्लाई कर्व कुछ भी नहीं है, वो दो चीजों का रिलेशनशिप बताता है। रिलेशनशिप किस चीज का है? प्राइस एंड सप्लाई। इस प्राइस पे आप कितना सप्लाई कर रहे हैं और लोअर प्राइस पे आप कितना सप्लाई, ये दोनों के रिलेशनशिप को जो बताता है वो कहते हैं सप्लाई कर्व है। और ये होता कैसे? ये अपवर्ड स्लोपिंग होगा। देखिए ये रहा आपका, आपको आई होप यू पीपल आर एबल टू सी कि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती गई हैं, आपकी क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बढ़ती गई है। प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई आर हैविंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो ये बहुत इजी से आपको याद हो गया। आई डोंट थिंक यू नीड एनीथिंग। ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सिमिलरली कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि इंडिविजुअल सप्लाई को डिटरमिन करती हैं। वो क्या चीजें हैं, क्यों प्रोड्यूसर कर उसको प्रोड्यूस करेगा, या व्हाट आर द थिंग्स व्हिच engage the producer to produce the goods and services. कह रहा है कि when the price changes, quantity supply will change. That is the moment along the same supply curve. When factors other than prices change, supply curve will shift. Here are some of the, कह रहा है कि देखिए दो तरह का शिफ्ट है ये डिटर्मिनेंट्स। ये शिफ्ट में बता दूं कि ये जो आप ग्राफ देख रहे थे वो सेम वाली जो हम बात कर आप लोगों को बताए थे कि आपका अगर प्राइसेस में थोड़ा बहुत अंतर होता है तो वो उसी लाइन पे ऊपर नीचे जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉस्ट बहुत ज्यादा चेंज हो जाए, टेक्नोलॉजी या कोई और चीजें चेंज हो जाए, तो वो क्या होगा, लेफ्ट या राइट को शिफ्ट कर सकता है। ठीक है। सो ये क्या चीजें हैं? पहला कह रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो इस आपके सप्लाई कर्व को चेंज कर देगा, वो आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है। Correct. Since most private company goal is the profit maximization, higher production cost will lower the profit. Thus, the hinder supply. Factors affecting production cost are input prices, base rate, government regulation, taxes. कि आपका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है? भाई मोस्ट ऑफ द कंपनी जो भी चीज प्रोड्यूस करती है उनका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है। अगर आपका कॉस्ट ज्यादा हो गया, इसकी वजह से आपका प्रोडक्शन लोअर हो जाएगा। अब प्रोडक्शन के कॉस्ट क्या क्या है भाई? आप लोगों को रखते, हायर करते हैं, उनको वेजेस देते हैं, कुछ उसमें मटेरियल या जो खरीदना होता है उसको उसकी प्राइस है, गवर्नमेंट के रेगुलेशन क्या है, टैक्सेस क्या है, ये सारी चीजें मिलके डिफाइन करती है कि प्रोडक्शन कॉस्ट कितने पे बैठ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, वो है एक्सपेक्टेशन फॉर द फ्यूचर प्राइसेस। कि ठीक है, कभी आपने कोई चीज अभी, जैसे अभी मैं कहूँ आज की डेट में कि आज तो बहुत ज्यादा डिमांड है मास्क की, आपने प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन ये आपको अगर किसी को ये दिख रहा है कि नहीं अभी वैक्सीन आ गया, कुछ भी चीज आ गया, बट it's not going away, it's going to be remain for another 8 months, 10 months. So the demand for the mask will be remain the same till December or November. So you are expecting something, then you are going to produce. If you feel that no, the demand for mask is going to be lower or going to be zero, you are not going to produce them. So इसको मैं बहुत स्पेसिफिक वर्ड में अगर आप लोगों से कहूँ तो ये है कि if producers expect future prices to be higher, they will try to hold on to their inventories and offer the producer to buy buyers in the future. Thus they can capture the higher prices. वो दोनों चीज में, एक तो कह रहा है कि फ्यूचर की हमें डिमांड दिखे या प्राइसेस ज्यादा होने वाली हैं,
तब भी वो क्या करता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो चीजों को सप्लाई करता है। फाइन। अब इसका देखिए, अब पहले मैं एक बात, अभी तक तो हम लोगों ने बात किया हर जगह ही कि इंडिविजुअल से कब ये मार्केट बन जाएगा, यू नो, वन द, लेट्स सपोज आई एम आस्किंग फॉर ए फेस मास्क, whole the place, whatever city or state you are living, each and everybody start demanding, so that become the market demand. what is the market demand? so हम यहाँ पे अब थोड़ा सा एक बार डिस्कस करेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड क्या है, ऐसे ही इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई क्या है। सो मार्केट वर्सेस इंडिविजुअल डिमांड एंड सप्लाई, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। देखिए छोटी सी थोड़ा सा हमने ट्राई किया है, उसको अभी हमने आपको बता भी दिया। मार्केट डिमांड इज द समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स डिमांड्स फॉर ए पर्टिकुलर आइटम। The transaction from an individual to a market demand schedule is accomplished by summing individual quantity at various price levels. Aggregate demand is not the same as the market demand. AD is, देखिए ये बड़ा, this need to be emphasis, कह रहा है कि aggregate demand is not the same as the market demand. Aggregate demand is schedule that shows that various amount of real domestic output which domestic and foreign buyers will desire to purchase at each possible price level. देखिए दो तरह की है, एक तो इंडिविजुअल डिमांड की बात है कि इंडिविजुअल डिमांड को आप जब सम अप कर दें डिफरेंट चीजों का, इट्स बिकम द मार्केट डिमांड, इट्स बिकम द मार्केट डिमांड। बट व्हाट अबाउट द एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड में जो होता है, only not the people who are living in India, we talk about the what is the demand in Europe, what is the demand in America, what is the demand in other countries. Once you take those things, then it's become the aggregate demand. Okay, तो ये आपका हो गया इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड। सो थ्री थिंग्स वी हैव टॉक अबाउट हियर। What about the individual firm supply versus market firm supply? ये क्या होता है? Okay, so कह रहे कि market supply is the summation of the individual firm entire supply curve for a particular item. The transaction from an individual to a market supply schedule is accomplished by summing individual firm quantity at a various price level. अच्छा देखिए यहाँ भी वही बात है, सेम है जो हमने आपको अभी बताया है, डिमांड के कॉन्सेप्ट में, कि अगर आप इंडिविजुअल्स की डिमांड को सम अप कर दें तो वो मार्केट डिमांड बन जाता है। ऐसे ही आप इंडिविजुअल फॉर्म की जो सप्लाई है उनको सम अप कर दें, उनके सारे डिफरेंट ट्रांजेक्शन आइटम को, दैट्स बिकम योर द मार्केट सप्लाई। But here also, if you talk about aggregate supply, that is different. Aggregate supply is not the same for market supply. Aggregate supply is a schedule showing the level of GDP available at each possible prices. वो GDP की बात है, और GDP include the what is the supply from the other countries as well. ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट आप वैक्सीन का देख लीजिए कि वैक्सीन की अगर हम सप्लाई की बात करें तो वैक्सीन ऐसा नहीं कि जो इंडिया में बन रहा है वही है, हम बाहर से भी वैक्सीन मंगा रहे हैं। तो जब हम एग्रीगेट सप्लाई, वैक्सीन की एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे, उसमें हम अदर कंट्रीज से कितना हमने इंपोर्ट किया है उसको भी हम वहां पे काउंट करेंगे। फाइन। अब जो हम शुरू में आप लोगों को बताना चाह रहे थे, एक टॉपिक हमने छोड़ दिया था, I started, then I felt that no, you should not go through this, कि what is the market, what is the market welfare, and what is the competition. Three things we try to discuss. So अब उसको मैं 5 मिनट दूंगी, we have the another 5 minutes, and then we will try to see whatever question answer I can do. So let's discuss the what is the market, what is the welfare market, and what is the competition. देखिए मार्केट जो है, ए मार्केट इज ए ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर ऑफ ए पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज। ये मार्केट जो है बायर्स एंड सेलर का ग्रुप है। आप कहीं भी चले जाइए, मार्केट क्या कहते हैं, आप नेहरू प्लेस चले जाइए, कुछ लोग खरीदना कुछ चाहते हैं, कुछ लोग बेच रहे हैं उसको, दैट इज बिकम द मार्केट। द टर्म सप्लाई एंड डिमांड रेफर टू बिहेवियर ऑफ ए पीपल एज दे इंटरेक्ट विद वन अनदर इन द मार्केट प्लेस। नेहरू प्लेस का हमने एग्जांपल आपको दे दिया। सो बायर्स डिटरमिन द डिमांड, सेलर्स डिटरमिन द सप्लाई। आपको खरीदने वाला वो डिटरमिन करता है कि डिमांड क्या होगी, और बेचना जो लोग वहां बेच रहे हैं, चीजों को सेल कर रहे हैं, वो सप्लाई को आपको डिटरमिन करता है। अच्छा, व्हाट अबाउट, ये तो मार्केट की बात कही।
व्हाट अबाउट द वेलफेयर मार्केट क्या होता है? वेलफेयर का तो आपको पता ही है, वेलफेयर प्रोग्राम्स जो हैं, वेलफेयर, देयर वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम्स इन इंडिया और एनीवेयर एल्स एज वेल. सो व्हाट इज द वेलफेयर मार्केट? कह रहा है कि देयर इज अ लिंक बिटवीन बायर्स विलिंगनेस टू पे फॉर अ गुड्स एंड सर्विसेज डिमांड कर्व, they defined as a consumer surplus. Acha, similarly there is a link between seller cost of producing a goods and services supply curve, they defined it producer surplus. The sum of consumer surplus and producer surplus is total surplus. The equilibrium of supply and demand maximize total surplus in the market. अच्छा, वेलफेयर मार्केट को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है. देखिए, कोई चीज को हम जैसे लेट सपोज इफ आई एम गोइंग इनटू मार्केट, आई एम ट्राइंग टू बाय ए फेस मास्क. वो कुछ घर से मैं सोच के जाऊंगी कि ठीक है, मैं फेस मास्क के लिए 50 रुपए दे सकती हूँ या 60 रुपए दे सकती हूँ, या जो कुछ भी, कुछ मेरा एक एस्टिमेट होगा. वहां मैं कितना देती हूँ, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस हुआ है ना, उसको कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं. ऐसे ही प्रोड्यूसर सरप्लस भी होता है कि एक प्रोड्यूसर जो है वो किसी चीज को बनाता है तो वो कुछ उसकी बेसिक कॉस्ट रखता है कि हाँ ठीक है, हमने पेन बनाई है, पेन हम सेल करने जा रहे हैं, पेन की प्राइसेस जो है हमने जो कॉस्ट लगाई है 10 है, लेकिन वो 20 रुपए में उसको बेचता है. तो जो 10 में उसने बनाया और 20 में जो बेच रहा है, वो प्रोड्यूसर का सरप्लस है. अगर इन दोनों के सरप्लस को आप मिला देते हैं, उसको कहते हैं टोटल सरप्लस. और जो आपका इक्विलिब्रियम होता है कंज्यूमर्स एंड डिमांड एंड सप्लाई का, वो मैक्सिमाइज करना चाहिए सरप्लस ऑफ द मार्केट. दैट इज द बेसिक फंडा. ओके, सो लेट्स सी हाउ वी कैन गो फर्दर. अब कह रहा है कि डू द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी मैक्सिमाइज द टोटल वेलफेयर ऑफ द बायर्स एंड सेलर्स. कह रहा है कि क्या जो मार्केट में जो भी इक्विलिब्रियम हम देखते हैं, वो बायर्स एंड सेलर का जो भी उनका सरप्लस है, क्या उसको मैक्सिमाइज करता है कि नहीं? दैट इज द क्वेश्चन वी आर आस्किंग, and that is the question we are looking for. We can get the answer. कह रहा है कि market equilibrium reflect the way market allocate scarce resources. कि इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है कि मार्केट जो है, जो स्केर्स, यानी कोई चीज अबंडेंस में नहीं होती, स्केर्स में होती, उसको एलोकेट कैसे करता है. Whether the market allocated is a desirable can be addressed by welfare economics. और वो जो है कि efficient allocation की जो हम बात करते हैं, आपको पहले वाली क्लासेस में हमने बताया है कि what is the efficiency. Efficiency वो होता है कि जहां पे एक आदमी का नुकसान किए बिना आप दूसरे का फायदा न कर सके, उसको इफिशिएंट एलोकेशन कहते हैं, और वो हम डील करते हैं वेलफेयर इकोनॉमिक्स में. ओके, सो अब नेक्स्ट हम बात आपको करेंगे, ये है वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज. ये हम आपको नेक्स्ट वाला जो सेक्शन होगा आने वाले टाइम में, उसमें हम थोड़ा वेलफेयर क्या, इफिशिएंसी क्या होती है, पैरेटो ऑप्टिमलिटी क्या होती है, ये सारे सेक्शन हम इंक्लूड करेंगे, बट यहाँ के लिए इतना ही काफी है. सो व्हाट इज द कंपटीशन? 3 क्वेश्चन हमने किया था, मार्केट, वेलफेयर मार्केट एंड व्हाट इज द कंपटीशन. So the competition जो आपका है, a competitive market is a market in which there are many buyers and sellers so that each has a negligible impact on the market price. कंपटीशन वो होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग खरीदने वाले, बेचने वाले हों, और वो दोनों बहुत ज्यादा जो प्राइस फिक्स हुआ है उस पे उनका कोई इम्पैक्ट ना हो, कुछ उसको कर ना पाए, चेंज ना कर पाए, उसको कहते हैं कंपटीशन. भाई कंपटीशन बहुत तरह के हो सकते हैं. एक परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है, मोनोपोली हो सकता है, मोनोपोलिस्टिक हो सकता है, ऑलिगोपोली हो सकता है. अच्छा ठीक है, थोड़ा थोड़ा हम इसमें बता देंगे कि परफेक्ट कंपटीशन, प्रोडक्ट्स आर द सेम, numerous buyers and sellers, so that has no influence over price. Buyers and seller are price takers. Okay. अगर मोनोपोली होगी तो क्या होगा? मोनोपोली में होता है एक ही बायर है, सेलर्स नो, देयर आर वन सेलर्स, देयर आर मेनी बायर्स. उसी का एक ऑलिगोपोली, उसी का एक पार्ट होता है जिसमें कम लोग खरीदने वाले होते हैं. नॉट ऑलवेज एग्रेसिव कंपटीशन इसमें नहीं होता है. एक चौथे तरह का आपका कंपटीशन होता है जिसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं, जिसमें मेनी सेलर्स हो सकते हैं, स्लाइटली डिफरेंट
उनके प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की इसमें मोनोपोलिस्टिक में बात होती है। और इसका सबसे बड़ा मैं एग्जांपल हमेशा देती हूँ कि लेट्स सपोज वी आर हैविंग द लैपटॉप आपका एप्पल का भी आता है, लिनोवा का भी आता है, आपका डेल का भी आता है, तो ये मोनोपोलिस्टिक है, यानी एक नहीं है, यहाँ बहुत सारी मोनोपोलीज हैं और उनका थोड़ा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। खरीदने वाले लोग बहुत होते हैं, अब बेचने वाले लोग भी बहुत होते हैं, उसको कहते हैं मोनोपोलिस्टिक। तो ये हम थोड़ा सा कंपटीशन, सो देयरफॉर वी आर यू नो we have covered this class with the supply and demand first class. However, I will take another 3 classes to cover this whole topic. So thank you so much for attending, and I'm finished the class.